जो पहचान जो और की होती है तो मुझे लगा कि हीरे की पहचान हो गई होगी इसे। तो वो बंदा 20 दिन तक मेरे से चाय के सिगरेट के पैसे लेता रहा। तो उससे जो पैसा कमाया ना, मैंने एक कार ली। आई बॉट अ ओल्ड होंडा सिटी फॉर 50,000-60,000 रुपीज़। For the next 3 weeks I slept in that car. But that's 3 years when people had, so लोगों के जो ताने सुने मैंने, जो rejection के ये सुने मैंने, वो थोड़ा difficult था. And even my parents understood that he's going through something. You know, we used to live with the एक वड़ा पाव सुबह में, आफ्टरनून में चाय और बिस्किट, एंड शाम में कोई डिनर नहीं. बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग है यार, और बहुत ऑनेस्ट और जेन्युइन फीलिंग है कि ये प्यार के बिना तो हम कुछ नहीं हैं, ऑडियंस के रिस्पांस के बिना हम कुछ नहीं हैं. हम अगर काम करते हैं, वी आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस टू द ऑडियंस, लाइक एवरी अदर बिजनेस इन दिस वर्ल्ड इज प्रोवाइडिंग समथिंग टू द पब्लिक. वी ऑल्सो आर रेंडरिंग आवर सर्विसेज. And if the service gets response is when you feel that you're doing well and you're doing a good job in whatever industry you're in. And मैं जहाँ से शुरू किया हूँ, because of all the things that I've gone through, the process that I've gone through, the journey that I've gone through, today that response feels worth it, feels like it was inevitable, but I don't fly too high with it. Because I know that I'll have to keep doing the good work to still get it. And मैं भी ऐसा हूँ, आप भी ऐसी हैं, हर कोई ऐसा है कि जब आप सर्विसेज, आपके क्वालिटी कम कर देते हो सर्विस का, कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर क्वालिटी ऑफ वर्क कम हो जाता है तो उसकी पब्लिक डिमांड भी कम हो जाती है. So you have to be genuinely there all the time. You'll have to keep giving the best. And so that's what my prospects are. I aim to do that. I need to deserve the love. I need to deserve the appreciation. Without that, I will not like it. You know. So I think it feels lovely. It feels very overwhelming, and I'm proud to be here. My parents are very proud that I'm here, but I'll not take it lightly. थोड़ा सा पहले से शुरू करता हूँ मैं कॉलेज में था. I always fancied the world, but I didn't know how to bring it out in the family. I didn't know how to. But my father's side are all engineers and doctors, and तो family से ही पढ़ाई का pressure काफ़ी था, especially my dad's side. My dad was not like that, luckily. Luckily, my dad was not like that. So I had to first confront myself to let go of the studies and pursue this. But now the convincing part was a little difficult. My brother, who is no more today, but he was a big help at that time, because 11th, I remember 11th standard में था मैं, और मैं क्लास में बैठा था, मैथ क्लास चल रहा था, और मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा था because I know what I wanted to do and I wanted to be an actor, but I didn't know how to face it. I didn't know how to come out and tell the people that I wanted to come here, come to Mumbai. And when I did that, I sent a long message to my brother, telling him the pros of what I want to do, the reasons why I want to do it, why I'm so frustrated, why I'm so angry with everything today. And I really was. I was really angry with the way life was going on for me. It was on a loophole, because हर दिन सुबह उठता था, मैं कॉलेज पहुंचता था, मैं कॉलेज में मन नहीं लगता था मेरा, शाम में घर आता था, मैं सिर्फ वो स्पेस जो थिएटर वाला स्पेस था मेरा, 2 घंटे जो मैं थिएटर में बिताता था, वही मेरा ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण टाइम था. बाकी तो ऐसी ही ज़िंदगी बीत रही थी, you know, in trying to be something, trying to want to do something, and I'm not being able to do because I don't know how to face it. So that message was the first instant of getting to the place where I wanted to confront it. So my brother responded saying that, come home, we'll figure it out. That was a huge boost. I had tears in my eyes when I read that message. You know, I went back home and he sat down with me that night. He told me, because since he's an actor, he was an actor, he knew the industry and he knew things over there. So he sat down, I think we spoke for 5 hours after that. And he just spoke and he told me everything that is there is related to the industry, in terms of how it is so cutthroat and how it is so difficult and how it is not easy anymore. And before, when he became what he became, in his time it was a little more easier according to him. But it became a more commercial field after that point.
So he told me that all these things are going to be a big hassle. Are you ready to face it? Are you ready to face rejection? Are you ready to face all these exterior people that are going to try and drag you down, bring you down? And in terms of all of that conversation, there was a lot. 5 घंटे बात करना किसी से is not a small thing. It was a huge conversation. But at the end of that conversation, all the things that he told me made me feel like, shit, am I really ready for this? Should I actually put my foot into this? Because it's a big world. It's not a big world when you're inside it. But the outer circle, if you look at it, it's a huge place. It's like people say every day, millions of people हर दिन मुंबई में उतरते हैं एक्टर बनने के लिए, और उनमें से कौन, आपको पता भी नहीं होता कि कौन बन रहा है कौन नहीं बन रहा है, पर बहुत कम लोग उनमें से एक्चुअली सक्सेसफुल हो पाते हैं. तो that was scary. For a 15-year-old, 16-year-old boy, it was very scary. But at the end of that, he told me one thing that motivated me. He said, but I'll tell you one thing. He said, I was never made for that industry. You are. This is what he said last. I think that's he saw that in me, and he told me that. I asked him. I said, why would you say that? He says, because I'm too. What did he say? He said, I'm too honest. I'm too. I can't face any kind of rejection. For me, it has to be good, or it has to be none. That's what he said to me. But you, on the other hand, know how to handle things because of the humor that you have. And परसों मैंने जावेद अख्तर का एक कहावत सुनी. कहावत नहीं थी वो. He was telling someone about this. He said, humor is the best thing you can have as a human being. It is not for the good times in your life. Humor is not for the good times in your life. Humor is for the wrong, bad times in your life. It acts as a shock absorber in the difficult times. It lets you tolerate that issue. It lets you tolerate difficulties in your life. So it acts as a shock absorber for your life. So he said that he said in different words, but he said this in the same way. He said, you have humor to support you. So you know how to handle these things. And so then he spoke to mom. Dad was always willing. Dad ऐसे थे कि जो करना है कर बेटा, तेरी मर्जी. तो 16-17 साल का लड़का मुंबई आया पहली बार. वो पहली जर्नी ही मेरी ऐसी रही है कि मैं I came in the train because I left immediately. The moment I got acceptance, I went to the station. I packed 3 clothes. I went to the station. I took the next ticket that I got, and I got a general compartment की ticket, and I sat in that train. I sat रात को Bangalore से. रात को शुरू हुई वो ट्रेन 8:30 बजे. और क्योंकि जनरल कंपार्टमेंट में आपको स्पेस नहीं मिलता बिल्कुल बैठने के लिए, ना खड़े होने के लिए, ना कुछ करने के लिए, तो आप धक्के खाते हुए खिसकते रहते हो उस जगह से. तो पहली रात को मैंने क्या किया, मैंने अपनी चादर बिछाई बीच में जहाँ पे लोग चलते घूम रहे थे. मैं चादर बिछाई, मैं सो गया. तो अगली सुबह जब उठा मैं, तो उससे थोड़ा नीचे आ गया था, पता नहीं कैसे आया मैं. बट बाय द टाइम आई रीच्ड मुंबई, हिलते धक्के खाते बाथरूम के अंदर घुस गया था मैं. And that, I think it was 5 hours. The last 5 hours that I traveled to Mumbai was inside the bathroom, sitting down like that. चबूतरे पे जैसे बैठते हैं हम लोग, और उसमें मेरे साथ थे 6-7 लोग. बाथरूम के अंदर बैठे थे हम, और दरवाज़ा खुला था बाथरूम का, तो बाथरूम करने का भी कोई ऑप्शन नहीं आपके पास. But I don't know what, it was so exciting. I wanted to just come here, man, no matter what. And ऐसा नहीं थी, कुछ नहीं प्रॉब्लम थी मुझे. और ऐसा नहीं था कि रिजर्वेशन, ऐसा हो सकता था कि मैं रिजर्वेशन टिकट लूँ 15 दिन बाद की कंफर्म हो जाए और मैं आ जाऊँ, लेकिन वो 15 दिन भी मुझे नहीं रुकना था. I was not. The moment I got acceptance, I said I'm going. I took a couple of clothes and I left my house. So that was a 16 and a half, 17-year-old boy who landed in Mumbai. I entered Mumbai. I didn't know anybody. I didn't know where to go. I didn't know what to do. First night, I think CST में उतरे हम. मैंने ट्रेन पकड़ा. मुझे सिर्फ अंधेरी के बारे में पता था. तो मैं अंधेरी पहुंच गया लोकल ट्रेन से. My brother's friends are here. Suhail is one of the friends that I called first. I called him and I told him I'm in Mumbai. I don't know where to go. So he said I'll meet you tomorrow. तो उस रात में चलता घूमता हुआ मुंबई एक्सप्लोर करता रहा. I didn't go anywhere. I didn't sleep anywhere. I stayed up the night and I went around looking for these places in Mumbai. I was excited that I'm in Mumbai. And since I've come from Bangalore, it's a very cold, decent weather place. Mumbai is hot and humid, and this is the first time I've landed here. So I think by the morning I was sweating so much that my entire shirt and pant and my shoes were wet. तो ऐसा लग रहा था कोई बारिश पड़ी है.
सुहेल सुबह मिला मुझे, he took me to his place, he took me to a friend's place, and for the next I think 15-20 days I stayed there, and then I got a place in Santa Cruz, where there were 17 people, PG में 17 लोग थे उस घर में, और 2 बेडरूम का घर था। मैं पहले दिन जब गया दोपहर में, मैंने पेमेंट की थी 2 महीने की, एडवांस पेमेंट करती थी। जब मैं घर पे गया था पहले जब मिलने के लिए, तो 2 बजे थे, दोपहर के 2 बजे थे, तो मुझे पता नहीं था कि कितने लोग कहाँ हैं। रूम हॉल में मैंने देखे बंकर बेड्स लगे हुए हैं। रूम में मैंने पूछा उनको कि कौन कितने लोग रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि आपके रूम में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं। मैं कहा ठीक है, 5 इसमें 5 उसमें, 10 लोग होंगे, चल जाएगा। तो मैंने पेमेंट कर दी थी, एंड रात को मैं बाहर निकल गया घर से, और कुछ फ्रूट्स लेके आया मैं। हाँ, फ्रूट्स लेके आया मैं, अपनी फ्रिज में रखा फ्रूट्स, कॉफ़ी ले आया, कॉफ़ी कैबिनेट में रखा, मैंने शुगर रखी थी, और मैं सो गया। अगली सुबह उठा, एंड आई वांटेड टू मेक कॉफ़ी, सो आई वेंट टू द किचन एंड आई ओपन दैट फ्रिज। ऐसे दूध तो है नहीं, मेरा दूध कोई बचा नहीं था, कॉफ़ी पाउडर आधा ख़त्म हो चुका था, चीनी ख़त्म हो चुकी थी, फ्रूट्स मेरा 1 केला बचा हुआ था, आधा एप्पल। और मैंने आई केम आउट एंड आई सेड ये क्या हुआ है, कोई किसने लिया भाई ये? तो वो बंदा जो बैठा था, क्या हुआ? मैंने कहा मेरे फ्रूट सब खत्म हो गए यार, केला खा गया कोई, 1 केला बचा हुआ है, आधा एप्पल बचा हुआ है, आधा एप्पल कौन खाता है? तो उसने कहा कि अच्छा ऐसा हुआ है। मैंने कहा किसने किया है वो? कह रहे किसको पूछेगा? मैं कहा क्यों? फिर 17 लोग रहते हैं इस घर में। तो मैंने कहा अब? मैं क्या करना होता है, तुम लोग कहाँ रखते हो अपनी चीनी? मैंने कहा कवर्ड में लॉक कर। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें तो कवर्ड में लॉक होती थी, एक सेक्शन दिया था आपको कवर्ड का जिसमें लॉक होता था। सो चीनी तो मेरे उसके बाद जो हर सुबह थी मेरी, कॉफ़ी, दूध, चीनी और चिटी, ये 4 चीज़ें होती थी कॉफ़ी में मेरे। क्योंकि चीनी जब लॉक करके रखते हो तो चिटिया तो आनी ही है, लाजमी है वो। तो दैट वाज 2 months ऑफ द जर्नी, एंड इन दैट प्रोसेस देयर वर लॉट ऑफ आई डिडंट नो व्हाट टू डू यार। मैं क्या करता था, मैं सुबह निकलता था घर से, और आई यूज्ड टू टेक अ ट्रेन फ्रॉम सेंटा क्रूज में था ये। आई यूज्ड टू टेक अ ट्रेन फ्रॉम सेंटा क्रूज, रीच अंधेरी, टेक अनदर ट्रेन फ्रॉम अंधेरी, आई यूज्ड टू टेक अ टिकट टू CST। ठीक है, ये क्योंकि मुझे एक्सप्लोर करना था, तो मैं अंधेरी से लेके CST तक हर एक स्टेशन पे उतरता था, वहाँ के स्टेशन का चक्कर लगाता था, आसपास क्या चीज़ें हैं देखता था, फिर जाके ट्रेन में बैठता था, फिर अगले स्टेशन पे उतरता था, फिर अगले पूरे जर्नी लेता था मैं, और ऐसे करके CST तक पहुंचा है मैं रात भर तक। आई रीच CST इन द नाइट, आई वेंट आउट, आई हैड अ वड़ा पाव और समथिंग लाइक दैट, टुक अ ट्रेन बैक टू अंधेरी, टू अनदर ट्रेन फ्रॉम अंधेरी टू सेंटा क्रूज, एंड आई केम बैक होम। So I did this for a good 1.5 week. Every day I used to explore a new space, a new place, not knowing where to go, what to do. So someone at some point told me आराम नगर में आपके ऑडिशन ज़्यादा होते हैं, तो आराम नगर चले जाओ। तो रोज़ सुबह बैग पैक करके शर्ट पहन के आराम नगर निकल जाते थे। वो हुआ आराम नगर में। अब देखो ऐसी चीज़ है कि आपको पता है, you don't know what to do. So what happens is you find people that are wrong. You don't find the right people, you know, you find very wrong people. एक बंदा मिला था मुझे जो मुझे रोज़ कहता था कि आप मेरे पास ट्रेनिंग पे आओ, मैं आपको डांस वांस सिखाऊंगा, एक्टिंग सिखाऊंगा। तो हम क्योंकि आराम नगर में मुकेश छाबड़ा की भी ऑफिस थी, तो ही गेव मी अश्योरेंस दैट मुकेश छाबड़ा के ऑफिस में बैठ के तुझे मैं फिल्म दिलवाऊंगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड था, मुझे लगा कि यार ये यही चाहिए था, यही तो ब्रेक होता है। कोई तो ऐसा इंसान मिलता है जो आपकी हीरे की जो पहचान जो और की होती है, तो उसको मुझे लगा कि हीरे की पहचान हो गई होगी इसे। तो वो बंदा 20 दिन तक मेरे से चाय के सिगरेट के पैसे लेता रहा और ख़ुद चाय पीता रहा, सिगरेट पीता रहा, मैं तो नहीं पीता था। लेकिन मेरे से सारे खर्चे करवाता था वो, और मुझे बिठाता था, बहुत बातें करता था मुझसे, थोड़ी डांस सिखवा देता था, थोड़ी बातें करता था। तो आफ्टर 20 days I started realizing that something is wrong here, you know, something is not right, and that happened, and I left him. And आराम नगर में हर एक ऑडिशन, ओपन ऑडिशन पे पहुंच जाते थे हम लोग। मैं खड़ा होता था, मैंने कहा सर मैं फिटिंग द रोल। तो एक था मराठी एक्टर्स ओनली का बोर्ड लिखा हुआ था, मैं अंदर घुस गया। मराठी क्या, मुझे हिंदी तक नहीं बताती। आई एम फ्रॉम बैंगलोर यार, आई एम फ्रॉम अ साउथ इंडियन स्पेस, तो हमारी हिंदी भी दक्षिणी उर्दू है थी, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द हिंदी दैट वी स्पीक ओवर हियर। तो मेरी हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो मराठी तो दूर की बात थी। तो मैं खड़ा हुआ वहाँ पे, उन्होंने बोला कि मराठी आती? मैंने कहा आती है, नो ऑडिशन दे। मैं खड़ा रहा, मैंने कहा आम्ही मराठी आता माझी सटकली। इतना पता था मुझे क्योंकि अजय देवगन की फिल्म देख चुका था मैं। तो वो रुक गया, कह रहे इतना ही? मैं कहा हाँ इतना ही पता है। कह रहे पागल है कि अंदर क्यों आया तू?
मैं कहा इंट्रोडक्शन ले लो ना प्लीज़। कह रहा नहीं चाहिए नहीं इंट्रोडक्शन, मराठी एक्टर के लिए। मैंने कहा ले लो ना, बाकी कभी काम आएगा। तो उसने तरस खा के मुझ पर इंट्रोडक्शन ले लिया उसने। गुड थिंग इज दैट few months down the line that person called me for a small character in ये vada. That's what I did, my first television character. एक आध मुझे मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स मिले यहाँ पर। बाबू शाह के साथ मैंने एक रैंप वॉक किया था एंड आई डिड वन डिज़ाइनर्स कैटलॉग, नॉट डिज़ाइनर, कैटलॉग शूट्स होते थे उस वक्त जो अपने आज अमेजोन पे, पर उससे उस वक्त ऑनलाइन के जो पोर्टल्स होते थे उसमें दिखते थे। तो उससे जो पैसा कमाया ना, मैंने एक कार ली। आई बॉट अ ओल्ड होंडा सिटी फॉर आई थिंक 50-60,000 रुपीज़। फॉर द नेक्स्ट 3 weeks आई स्लेप्ट इन दैट कार इन लोखंडवाला बैक रोड। एंड वो भी एक अमेजिंग सिनेरियो था कि पहले 4 दिन तो कोई मुझे कुछ नहीं पूछा, लेकिन 5वें दिन मैं सो रहा था कार में ही, एक समन के मैं नॉक्ड एंड दैट वाज, आई लुक्ड एट इट, वाज अ कॉप, वाज अ पुलिस ऑफिसर थे। तो मैंने कहा क्या कर रहा है इधर? मैंने कहा सो रहा हूँ सर। कह रहा घर नहीं है? मैं कहा है ना बेंगलोर में। तो मैंने कहा यहाँ क्या बैठा है? मैंने कहा नहीं है सर, कहीं जाना मुझे, घर नहीं है मेरे पास। तो मैंने कहा आओ ना अंदर बैठो ना एसी में। तो मैंने उनको अंदर बिठा लिया। स्टार्ट दी एसी ऑन किया हम लोग ने। आई थिंक 1:30 ही हैड कम टिल 5 o'clock ही वाज सिटिंग विद मी एंड हैविंग अ कन्वर्सेशन विद मी। And the conversations were such, it was such an amazing conversation. It went from one graph to the other. He asked me, he said, क्या करने आया इधर? मैं कहा एक्टर बनने आया हूँ सर। तो उम्र क्या है तेरी? मैं कहा 17 साल। फिर एक्टर बनेगा? कह रहा तू घर बार सब छोड़ के इधर आ गया एक्टर बनने को, घर भी नहीं इधर? मैं कहा नहीं है सर। उसने सर पे हाथ मिला, कह रहा क्या लोग हैं तुम लोग यार, कितने लोग आते हैं, पता है ना तेरे को? मैंने कहा हाँ सर पता है। तो कह रहा तू बन जाएगा एक्टर? मैं कहा हाँ सर बन जाऊँगा। कह रहा तू घर जाना, कहीं जाके घर में ले ले। मैं कहा पैसा नहीं है ना घर पे रहने के लिए, आप एक काम करो अपने घर पे रख लो कुछ दिन के लिए। तो ऐसी कॉन्वर्सेशन होती थी हमारी। एंड बट यू नो वी यूज्ड टू लिव विद एक वड़ा पाव सुबह में, आफ्टरनून में चाय और बिस्किट, एंड शाम में कोई डिनर नहीं। बट ऑल दिस इज अ प्रोसेस दैट आइदर यू फील मॉरली यू नो डन, और यू मॉरली आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है, या आप इसे पॉजिटिवली भी ले सकते हैं। सिखा भी जाता है। अब ये हुआ कि ये 6 महीने तो बिता दिए मैंने ऐसे, पर मुझे समझ में आया जब मैं ऑडिशन देने लगा कि मैं 17 साल का लड़का जो है ना, वो ना तो बच्चा है, नॉट इज अ मैन, ही स्टक इन बिटवीन समवेयर। दैट एज यू आर स्टक इन बिटवीन सम। आई वेंट बैक होम। आई डिसाइडेड वन डे कि यहाँ मुझे कुछ दाल गल नहीं रही है। I went back home. And when I went back home was the most difficult time for me because everybody thought I lost and came back. My friends, peers and people, acquaintances, relatives सबसे ज़्यादा. And I had a very huge group of friends who were not actually friends but just were with you because you were a little more advanced than they were and a little more famous in terms of whatever you did, because हमारा attitude ऐसा था। मैं तो अपनी गली का हीरो था। यहाँ मुंबई में आके समझ में आया ना कि आप कुछ नहीं हो बेटा, है ना। तो जो सोचते थे ना कि ये तो जा रहा है मुंबई, आ जाएगा वापस, वो बड़े खुश हुए थे। मेरे रिमेंबर द चाय वाला जो नुक्कड़ वाला जहाँ पे लोग ज़्यादा जाते थे, वो पूछा मुझे आ गया वापस? मैं कहा हाँ। फिर अभी कर ले पढ़ाई, ऐसे एटीट्यूड होते थे। तो बट दैट 3 years that I stayed back here, I did my graduation after that. So I had left my 11th and 12th and I came back. I did my graduation. While I was doing the graduation itself is when I prepared myself for a new world, because I had now understood that this is what it is there. ऐसी दुनिया है, ऐसी ज़िंदगी है, तू वहाँ जाके कुछ नहीं है, तो तू अब इस चीज़ को समझ एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर सेल्फ। आई ओपनड अप अ शॉप, अ गारमेंट स्टोर इन बैंगलोर, जो कि मैं फिजिकली आई शुड ओपन इट इन मॉर्निंग एंड शट इट इन द नाइट, शो गारमेंट्स द एंटायर डे। दिन में 1000 गारमेंट्स दिखाता था, दिन में से शायद 4 या 5 कोई लेता था। इवन दैट प्रोसेस taught me how to be patient, you know, and not lose your cool. I did a little bit of real estate with my brother. I used to show houses to people, and my God, people had so many issues with small things. एक बार मेरे गारमेंट स्टोर में मुझे याद है, बंदा आया मेरे पास वापस, जो मैं होलसेल वाले कपड़े लेता था और मैं बेचता था बैंगलोर में, क्योंकि ठंड होती है तो जैकेट्स और पुलोवर्स और ये सब थे। तो एक बंदा जो मैंने जिसको बेचा था, वो वापस आया मेरे पास, अपनी जैकेट को उल्टा करके उसने मुझे दिखाया और कह रहा है ऐसे देखो धागा निकल रहा है। तो मैंने कहा, मैं जेन्युइनली कहा, मैंने कहा सर धागे से तो कपड़ा बनता है, तो धागा निकलेगा तो क्या निकलेगा? यू नो, और अगर वो धागा ना
धागा नहीं निकलना चाहिए आपके कपड़ों में तो जाइए ना गुची वूची जाके लीजिए, लीवाइस में कपड़े लीजिए, तब समझ में आए कि आपको धागा निकल रहा है तो आप जाके कंप्लेंट भी कर सकते हो। यहाँ 350 की चीज़ लेकर आप घर जा रहे हो, अब उल्टा करके कह रहे हो कि धागा निकल रहा है, तो 350 की चीज़ में क्या मिलेगा आपको? मैं ज़्यादा थोड़ी दे पाऊंगा आपको यार। तो we used to deal like that. Those are the people that we dealt with. But in that 3 years, I remember I prepared myself very well. I knew the world today. I knew how to come here and be. But that 3 years when people had so लोगों के जो ताने सुने मैंने, जो rejection के ये सुने मैंने, वो थोड़ा difficult था. And even my parents understood that he's going through something. It was not an easy time for me. I used to feel very demoralized. But I kept my hopes up. I kept my shoulders high, and I held my head high, and I told myself कि नहीं, this is not you this is not you failing, this is you preparing. So prepare for it. And so then next I came back here. I think 1 साल के बाद मुझे शो मिल गया था. उसमें भी एक ये रहा है कि when I got my first show, क्या कसूर है आमला का, and I had shot the pilot for it, and I had shot it for a very minimal amount. मतलब I had signed it for a very minimal amount, बहुत कम पैसे per day. It was 3,000 rupees per day. एंड तो मैंने पायलट शूट कर लिया था हम लोग ने. फिर उनका वेटिंग पीरियड आ गया था 8 महीने तक. वेटिंग पीरियड आ गया था 8 महीने, तो दोनों 8 months, सो ऑलमोस्ट या. सो आई यूज्ड टू मेंटेन अ डायरी, पर्सनल डायरी, आई स्टिल डू. So in that I had written, I said I've gotten a show, negative lead in a Star Plus show. मैं घर में सबको बता दिया था मैंने कि मुझे शो मिल गया, Star Plus का एक शो मिल गया. And it was very exciting, very happy. And 8 महीने की वेटिंग है. मैंने कहा ज़िंदगी इतनी लंबी गुजर चुकी है और 8 महीने क्या ही चीज़ें निकल जाएंगे. 4, 5, 6 महीने हो गए. 6वें महीने में मुझे कॉल आया इनसे, इस प्रोडक्शन हाउस से, और उन्होंने कहा कि देखो ये शो तो बन रहा है, लेकिन जो मेन कैरेक्टर्स, लीड कैरेक्टर्स हैं, उनको छोड़ के बाकी सब चेंज हो गए. Hey, that was bad because you've told everybody at home, you've told everybody, you know, हर किसी को, आप जिसको जानते हो उन सबको पता है कि आपको शो मिल चुका है और अब वो शो आने वाला है, लेकिन आप नहीं होंगे उस शो में, you know. And 3 days I locked myself in the room and I didn't get up. I couldn't get up. उठ नहीं पा रहा था मैं, क्योंकि मुझे पता नहीं कि अगला क्या करूँ मैं, अब क्या करूँ मैं, you know. And anyways, I went back to Mumbai. I went back to Bangalore that time because I needed to just settle down. I needed to take a deep breath and maybe come back. I stayed in Bangalore for a month and a half, and in between that process, I sat my mother and my brother and my father down, and I told them the entire story, कैसे ऐसा हुआ है. और 1.5 महीना हो गया था कि मुझे एक फ़ोन आया. एक बार फ़ोन उठाया मैंने, उसी प्रोडक्शन हाउस से था, कि सर वो कैरेक्टर कर लोगे आप सुवीर मलिक का. मैं कहा क्यों, क्या हुआ? कि नहीं, वो मॉक शूट हुआ, चैनल को लड़का पसंद नहीं आया जो करने वाला था. तो तब तक तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने का जो ये होता है, ईमेल होता है, वो भेज दिया था. मैं क्या, कोई कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ वाज कैंसल्ड, राइट. सो नाउ आई सेड कि कब से है शूट? कह रहे 4 दिन बाद से शुरू होने वाला है. तो मैंने पैसे 4 गुना ज़्यादा पूछे. मैंने 4 गुना ज़्यादा पैसे पूछे. वो परेशान हो गया, कह रहे सर क्या बात कर रहे हो आप, आपका तो उतना था. कह रहे हाँ था, अब नहीं है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कैंसिल हो गया ना, तो मुझे अब इतना चाहिए. अब मुझे पता था कि 4 दिन बाद शूट रहेगा, तो लड़के को अगर बोला है चैनल ने तो इसी को चाहिए अब. तो ये शायद यही प्रोसेस था जो मैंने उन 3 सालों में गेन किया था जब मैंने वेंट टू बैंगलोर. नो, द लर्निंग ऑफ हाउ बिजनेसेस वर्क, हाउ माइंडसेट्स वर्क. 17 साल का लड़का वुडंट हैव डन दिस. नाइव, एग्जैक्टली. ये ट्रिक्स नहीं बताते मुझे. करेक्ट. वो 3 साल जो मैंने बैंगलोर में बताए थे वो सीख रहा था मैं. आई थिंक सो, यू नो, वेरी नेचुरली इट हैपेंड. तो जब उसने बार बार फ़ोन करके मुझे, हर 15 मिनट में, यही भी हुआ है, हर 15 मिनट में फ़ोन करके उसने मुझे नेगोशिएट करने की कोशिश की कि सर इतने में कर लो. मैंने कहा नहीं उतना ही है, इतने में कर लो, नहीं उतना ही है. तो 4 बार ऐसे कॉल आए और बात पहुंच गई थी जहाँ पे मैं शायद कर लेना चाहिए था मुझे उतने अमाउंट में. फिर उसके बाद उसने फ़ोन, मैंने कहा देखो यार, मैं सब्जी मंडी पे नहीं बैठा हूँ, मैंने आपको एक रेट बता दिया है, आप वो रेट में अगर देना चाहते हो तो मुझे दो, वरना मुझे फ़ोन मत करो, बोल के रख दिया मैंने कॉल. अब 45 मिनट तक फ़ोन नहीं आया. मेरी हालत ख़राब. मुझे लगा मैं खुद को कहाँ जाके खुद को मारूं. मैं अपने आप को कोसने लगा, मैं अगर कर लेता यार, तू कहाँ से 3 गुना ज़्यादा तो वैसे हो गया था. मैं कर लेता, पागल, खुद को गालियाँ देने लगा मैं. तो 45 मिनट बाद फ़ोन आया, मैंने पहले रिंग में, हाँ हेलो बोलो. कह रहे सर ठीक है, आप आ जाइए मुंबई कल.
तो मैंने कहा ठीक है आ रहा हूँ मैं. सो आई साइन दैट फॉर अ ह्यूज अमाउंट. So that happened, and that's the problem again. For you to sign your first and not even a lead for such an amount, because it was the need of the hour. अब मैंने वो sign तो कर लिया. Now what happened was I started riding high, going wrong. I started feeling too good about myself, riding too high. And when that show finished, I thought कि मुझे पहले ही शो में जो में लीड नहीं था, मुझे इतना अमाउंट मिला है, तो मुझे अगले शो में लीड के लिए इतना अमाउंट मिलना ही चाहिए. करेक्ट? तो मैंने 8 महीने तक शो रिजेक्ट करा. उसके बाद 8 महीने तक, बेसिकली 2-3 महीने तक मैं शो रिजेक्ट करता रहा, क्योंकि मुझे बहुत कम पैसे मिल रहे थे. नाउ दैट्स द प्रॉब्लम विद यू राइडिंग हाई टू सून. You know, that's why I say that if you get success immediately, you don't know how to handle it. दुनिया कालीन की तरह मेरे पैरों के नीचे बिछ जाएगी और मुझे उस पर चलना ही नहीं आया वाला सिचुएशन हो जाएगा. तो जब वो हुआ 2 months 3 months I kept rejecting. I kept saying कि नहीं मुझे इतना बजट नहीं चलेगा, उतना बजट चाहिए, इतना बजट नहीं चलेगा, उतना बजट चाहिए. 2-3 महीने बाद वो फ़ोन बंद हो गए. लोगों का लाइमलाइट से दूर हो गया था फहमान, तो अब किसी को नहीं चाहिए था. 8 महीने ऐसे ही बीत गए, पत्ता भी नहीं चला. मैं बता रहा हूँ आपको, पत्ता भी नहीं चला. मैं उस बिल्ली के साथ बैठा रहा, प्ले स्टेशन खेलता रहा. 8 महीने निकल गए मेरे. कब निकले, कहाँ निकले, कुछ नहीं पता. I think after 8 months I started realizing कि shit man, this has gone wrong. I've done a mistake. कर लेना चाहिए था. इश्क सुभान अल्लाह मिला था मुझे ऑफर में as a lead, which Adnan did. I think Adnan did a great job, commendable job, very good actor. तो मुझे वो कर लेना चाहिए था. So yeah, I said no to those that process. तो 8 महीने पता नहीं चला कैसे निकल गए. तो वो शो था इश्क सुभान अल्लाह. But since after that, what happened was, because I was not getting any calls, I could have done another lead after that. I could have done a lead after that. But since I did that mistake, I had to again start from scratch. तो मैंने वापस अप्रोच करना शुरू कर दिया मैंने लोगों को. And then people don't say this to you, but जो डिमांड आपकी होती है उस वक्त अगर आप कैपिटलाइज नहीं करते हो उस चीज़ को, तो वो डाई डाउन भी हो सकती है. That's when I realized that. That's why I told you before also. Okay, I have to keep doing good work so that I can be accepted. And you can't just take that lightly, which I did at that time. Good that happened at that time, and it's not happening at this point. Starting में ही हो गया जब आप कुछ लोग कोई जानते नहीं थे. बस वो इंडस्ट्री में जितने लोग ने देखा होगा, शायद उन्होंने देखा होगा कि लड़का अच्छा एक्टर है, इसको उठाओ. जो उन्होंने ऑफर दिया उन्होंने भी छोड़ दिया कि यार चलो इतना भाव खा रहा है ये. तो उसके बाद मैंने वो एक और शो साइन किया था मैंने, डिस्कवरी जीत के लिए. डिस्कवरी जीत चैनल आया था आपको. 15 दिन उसका शूट हुआ, वो चैनल ही बंद हो गया. तो these things keep happening, and nobody says this, nobody knows this, nobody really understands what the journey is before you become what you become. फिर मैंने इश्क में मर जावा किया, जिसमें मैं CBI ऑफिसर था for 3 months, and every day I used to come back home because it was the ending of the show and the storyline was not going anywhere. I used to come back to my room and feel like crying every day, thinking कि मैं क्या कर सकता था, अभी क्या कर रहा हूँ. और क्योंकि I know I had the potential to do it. उस दिन अब आप सेंट्रल कैरेक्टर नहीं हो किसी शो के, तो आपको बिल्कुल स्पेस नहीं मिलता परफॉर्मेंस का. यू हैव टू फिनिश, ताकि वो बाकी अपने सेंट्रल कैरेक्टर्स पे ध्यान दे सके. आपके पास टाइम नहीं होगा. तो मुझे एक आई रिमेंबर सीन की इश्क में मरजावा में एक सीन था जहाँ पे मुझे पिछले 2 साल में जो कुछ भी हुआ, I was playing a CBI ऑफिसर, तो पिछले 2 साल में जो कुछ भी हुआ है उसकी कहानी बतानी थी. फोटोग्राफ्स को पिन पॉइंट करके कि आयशा ने इसके साथ वो किया तो उसको रिस्पॉन्स में इसने ये किया, इसके साथ वो हो रहा था तो शायद वो हुआ. तो दिस इज़ अ जर्नी आई एम टेलिंग अबाउट 2 years ऑफ दैट शो. और वो मुझे सुबह स्क्रिप्ट मिली थी, अगले दोपहर में मेरा शॉट लगा था. तो इतना कितना याद रख लेगा इंसान. 6-7 पेज का वो सीन था. तो मुझे एक्चुअली आई एम स्टेटिंग फैक्ट्स नाउ, सो आई कैन नॉट गो रॉन्ग इन फैक्ट्स. और मैंने शायद 3-4 टेक ले लिए थे पहले 2-3 पैराग्राफ बोलने में. तो डायरेक्टर ने बहुत चिल्लाया मुझ पर, कह रहे इस पर ध्यान देने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी ख़त्म करो ये सीन, क्या कर रहा है. तो आई टोल्ड हिम, आई सेड कि सर पूरी हिस्ट्री बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा तो टाइम दोगे ना आप, इतना तो मैं ब्रेक ले सकता हूँ. कह रहे यहाँ टाइम नहीं है भैया, टेलीविजन है यहाँ टाइम नहीं मिलता.
that was really heartbreaking to know for a fact that जो lead है उस show का वो कभी भी कुछ भी कैसे भी बोल सकता है और उसके लिए acceptance है, हाँ है. जो बाकी central characters हैं उनके लिए हाँ है. लेकिन मुझे अगर इतना बड़ा सीन अगर डिलीवर करना है जो सुबह में आपने स्क्रिप्ट दी है उसको डिलीवर करने में अगर मुझे थोड़ा सा भी टाइम लग रहा है तो वो दैट्स अनएक्सेप्टेबल सिंपली बिकॉज आई एम नॉट समवन substantial. I'm not substantial, I'm not important. So when that happens you need to either you go down the drain and you feel, which I used to do. I used to feel really bad and I used to cry, feel like crying and आंख भर आती थी मेरी और you start contemplating कि आप एक अच्छे एक्टर हो या नहीं क्योंकि मैंने जो जाना है मेरे बारे में अपने बारे में जो पोटेंशियल के बारे में जाना है शायद उसी लिमिट तक जाना है मुझे. आई थिंक आई स्टार्टेड बिलीविंग दैट ओके चलो ठीक है जो बैंगलोर में थिएटर होता था ना शायद उसी लेवल का पोटेंशियल है मेरा, उसी लेवल का पोटेंशियल होगा मेरा क्योंकि अगर यहाँ पे आके मुझे कुछ दाल गल नहीं रही है जहाँ पे एक्चुअली गलनी चाहिए वहाँ पर तो दैट मीन्स देयर समथिंग रॉन्ग विद मी. am I doing a good job? I'm not doing a good job. Obviously I'm not doing a good job. कोई क्यों डांट रहा है मुझे? एक डायरेक्टर का डांटना बहुत बड़ी चीज़ होती है. So that was morally very difficult to handle. First time I got morally confident about my performances when I did मेरे लैट की दुल्हन DJs का जो शो था क्योंकि उसमें पहली बार एक नया कैरेक्टर निभाने को मौका मिला मुझे. I had space to play around. The director started loving the work that I was doing. The team didn't have any issues with what I was doing. And I connected with all the characters. तो तब तक जितने भी छोटे मोटे काम करता रहा मैं. मनफोड़गंज की भी नहीं की थी मैंने उससे पहले, उसके बाद किया था, नहीं शायद उससे पहले. There was a web series I did. So in that space is when I started वापस coming back to confidence about the potential that I had and I started feeling like I can grow from here. But till then this is the journey and as much as I say it with a smile on my face, it's it being in that process is difficult. You have to keep lifting yourself up, getting back up, dusting yourself off and going on for another day. And it's not easy. Just to let yourself not get into the rut of negativity and the rut of being completely shattered every day. This is what this industry brings to you. Though when you talk about rejection, it's not on your face no. It's not that. It's the things that happen around you that I know. You're not even accepted. You're not even called. That is a no. Although you've done work, nobody's picking up the call and telling you come give an audition here. You're still going down and asking for those auditions. And you're still being said कि हाँ न बोलते हैं रुक जाओ. Now they know you. अब क्या हो गया, अब दोस्ती हो गई है क्योंकि थोड़ा काम कर लिया है साथ में तो थोड़ी दोस्ती हो गई है. अब इस दोस्ती के चक्कर में क्या होता है कि वो डायरेक्टली मुंह पे आपको नहीं बोल सकते कि नहीं यार नहीं करना. हाँ होता है तो कुछ बताएंगे आपको, कॉल करेंगे. तो ये स्पेसेस जो होते हैं ना ये रिजेक्शन होता है. And you have to overcome them. And in that process you find a lot of people who are going to morally bring you down also. The industry is known for the outer circle is very difficult. It's a very dangerous outer circle. People outside the circle of the industry are like crabs. केकड़े क्या करते हैं? केकड़ा कोई चढ़ रहा होता है तो उसके ऊपर चढ़ के उसको गिरा के वो चढ़ता है. ये outer circle है. Once you crack into that circle, the inner circle is very professional. Everybody wants to just do good work and come up together. So to crack into that is a long journey. When someone talks about nepotism, this is what I bring out. ऐसे जहाँ पे मेरी जर्नी रही है, जहाँ शायद मेरा स्ट्रगल ख़त्म होगा, वहाँ से वो नेपोटिज्म जो किड्स होंगे उनका स्ट्रगल शुरू होता है वहाँ से. सो किसी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है ना. सबका अपना अपना जर्नी होने वाला है. मैंने किसी और के नज़रिए से ये नहीं किया था. मैंने किया था क्योंकि मेरी दोस्त मुश्किल में थी. मेरी दोस्त को शायद मेरी ज़रूरत थी. मैंने उसको बोला भी ये बात. मैं शायद अगर वो सिचुएशन नहीं होता तो शायद अंदर नहीं जाता. So in that 28 days that he was in the hospital, I think we were all ready for the outcome of it. But like I also believe that he's there now. He's there. He's watching everything that I'm doing. Well, he didn't say cut also, and I just stood there. And I was flowing. My eyes were flowing. So he came and he hugged me from behind, Vaibhav sir, and he said, "जा घर जा." और उस रात को मैं बहुत रोया हूँ.
when I came back home. देखो वापस I think when he passed away I had gone to Bangalore and it was just a one day travel because I was shooting for अपना टाइम भी आएगा और बहुत ज़रूरी था कि मैं आके वापस शूट करूँ क्योंकि हमारा टेलीकास्ट कट टू कट चल रहा था. Strained relationships कोई नहीं है मेरे. My relationships with my parents and my brothers and my sister is beautiful. They are my constant support. My father, although he was always away in Saudi since the age of 2, but his morals till date have been my go-to, my pole of me being the guy I am today.